اور میں چاہوں گا کہ اب ذرا زینب کبریٰ جن کے بغیر کے ذکر کے بغیر محرم الحرام اور عاشور اور شہادت امام علی مقام جو ہے اور یہ جو کربلا جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس کا تذکرہ جو میں چاہوں گا کربلا کا وجود اور کربلا کی بقا جی دونوں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اگر زینب کبریٰ درمیان سے ہٹ جائے. جب ظلم کا خنجر ہوا پیوستے رگے جاں، جب ظلم کا خنجر ہوا پیوستے رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خاں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، افلاک سے نازل ہوئی جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب. عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خموں پیچ میں ڈھالا، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا. آئی یہ صدا آج سے تو محور دین ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آج خاص طور پہ پاک بیبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس گھرانے سے جو خواتین منسلک ہیں جو جڑی ہوئی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حسین. عزیزان گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ. اور حنا صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں. حنا ہمیں کچھ سنائیے آپ اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور دل گریا کنا اور نظر مدینہ، آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ حنا نصر اللہ صاحبہ. محترمہ، ہم بات کر رہے تھے جناب زینب کبریٰ کی. ایک تو میں چاہوں گا اس پر مزید آپ روشنی ڈالیے ان کے کردار پر، پھر یوم عاشور کے بعد جو ان کا کردار رہا، اور ایک تو اس حوالے سے ان دنوں میں بھی، اس کے بعد بھی، اور دوسرے آج کی جو عورت ہے، جو خاتون ہے، جو لڑکی ہے، جو انسان ہے پوری دنیا میں، اور پھر مسلمانوں کی جو خواتین ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت خاتون، بحیثیت ماں بہن بیٹی، جتنے بھی رشتے ہیں اہلیہ، اس حوالے سے اس گھرانے سے کیا پیغام جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے؟ سیدہ زینب کے بارے میں مجھے خود بھی تعجب ہوا جب میں نے تحقیق کی کہ نان مسلم آتھرز نے کتابیں لکھی، نان مسلم ریسرچرز نے
इस करबला की शेर दिल खातून को खिराज तहसीन पेश किया। नॉन मुस्लिम ऑथर की किताब का तर्जुमा मैं पढ़ रही थी, चूंकि जर्मन ऑथर है तो जर्मन में किताब लिखी तो पर्शियन में उसका तर्जुमा मैंने पढ़ा और आपसे शेयर भी करूंगी उसके जुमले। उसमें उसने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट सैयदा ज़ैनब, उसने कहा इसमें हमारी यहाँ डिग्रियां होती हैं, लोग दानिशगाहों में आके तालीम हासिल करते हैं और एक खातून जो घर के अंदर रही और कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली और कभी रोज़ा रसूल तक गई भी तो रात की तारीकी में, और शाम गरीबा की वो क़यामत खेज कैफियत जिसमें खुद शहजादी ने फरमाया है कि जिस वक्त मीर कारवान करबला सालार सरवर शहीदा का खुश गला कटा तो फरमाती हैं कि उस वक्त करबला की सरजमीन पर एक साथ बहुत से मंजर तख्लीक पा रहे थे। इधर हुसैन का सर कटा और नोके नेज़ा पे सवार हुआ, उधर फरमाती हैं साथ ही करबला की सरजमीन पर बहुत से सिपाही जो शुहदा के गले काट काट के एक दस्ता उनके सर जुदा कर रहा था और दूसरा फौरन उन कटे हुए सरों को नोके नेज़ा पे बुलंद कर रहा था, और चौथा मंजर जो तमाम मनाजिर एक साथ तख्लीक पा रहे थे सरजमीन करबला पर, फरमाती हैं कि घोड़ों को लिटाया गया और उनके सुमों में नालबंदी हो रही है, और एक जानिब हमने देखा कि जिनके सर कटते चले जा रहे हैं और नोके नेज़ा में पिरोए जा रहे हैं उनके लाशों को खींच खींच के एक जानिब लिटाया जा रहा है, और एक मंजर ये है कि एक दस्ता नेज़ा बरदारों का घोड़ों पर सवार हुआ और वो जमीन करबला को बरमाने लगा। तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो पता चला कि 6 महीने के रज़िया सगीर का लाशा उसकी जुस्तजू में, क्योंकि एक सर कम है और फिर वो एक नेज़ा बाहर निकला और 6 महीने के रज़िया सगीर का लाशा उलझ के बाहर आया, और फिर फरमाती हैं कि मादरे जनाब अली असगर की निगाहों के सामने वो नन्हे मुजाहिद का सर तन से जुदा किया गया और नोके नेज़ा पे सवार किया गया। और फिर पूछा कि अम्मा फिजा ये घोड़ों के सुमों में नालबंदी क्यों हो रही है, कहा बीबी बेगुनाहों के लाशों को पामाल किया जाने वाला है। और फिर ज़ैनब कुबरा ने अपनी निगाहों से बाकी बीबियों ने ये मंजर देखा कि घोड़े दौड़े और जिस तरह मीर कारवान करबला का लाशा पामाल हुआ, जिस तरह असाब पे ज़रबें लगाई गईं कि सारे लाशें मैदान करबला से हटा दिए गए। जब एहतजाज होता था, मुज़ाहमत होती थी कि ये हमारे कबीले का फर्द है, इसके लाशे को पामाल न किया जाए, और आखिर में वो मंजिल आई कि अकेले हुसैन का तन्हा लाशा करबला में था और घोड़ों के सुमों से पामाल हो रहा था। बीबी ने वो मंजर देखा और उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने खेमे जले, चादरें लुटी, उसके बाद बीबी ने जो अमल अंजाम दिया, टूटी हुई जुल्फ़िकार उठाई, यतीमों और बेवाओं को इकट्ठा किया, जली हुई कनातों को दोबारा से नस्ब किया और अल हफीज की आवाज बुलंद की और बीबी पहरा देने लगी। जब जरा तारीकी और बढ़ी तो बीबी नशेब कत्लगाह की जानिब आई, तारीकी का इंतजार किया इसलिए कि सर पे चादर नहीं, और जब नशेब कत्लगाह की जानिब आई, चूंकि जालिम कातिल हुसैन के आसार को मिटा देना चाहता था, तो अगर सैयदा ज़ैनब ये काम अंजाम ना देती तो किसी को पता ही ना चलता हुसैन इब्ने अली का लाशा कहाँ है। तो सैयदा तशरीफ लाई तो देखा पत्थरों का एक ढेर है, तो बीबी ने आवाज दी, तो जब आवाज दी, पुकारा, तो पत्थरों के ढेर से जवाब आया, उखैया उखैया, मेरी बहन ज़ैनब, इलैया इलैया, मेरी जानिब आओ। तो जब बीबी गई तो पत्थरों के ढेर को हटाया, छोटे बड़े पत्थर, बड़ा वक्त लगा, और जब हटाया तो उसके अंदर से गोश्त के रेज़े बरामद हुए। अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खानम तैयबा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहिबा। और नाज़रीन गिरामी, आपके हाफ़ज़े में अगर पूरी डिक्शनरी भी हो तो भी जब आप इन पाक हस्तियों का जिक्र करते हैं और जो कुछ नबी के खानवादे पर बीता, खुद आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सीरत का मुतालिया कीजिए और जिस तरह की आपने सोबत उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए बर्दाश्त की, तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आपके पास अल्फाज नहीं रहते हैं। आज हमने इंतहाई मोहतरम हस्तियों का, मोहतरम ख़वातीन का जिक्र किया। हर खातून यकीनन काबिल एहतराम है, मगर नबी के घराने से मुंसलिक अहले बैत की ख़वातीन का एक अपना मकाम है यकीनन जिसको कोई पहुँच नहीं सकता है। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, ज़ुबाने तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब। अली की याद को जिंदा किया ज़माने में, अली की याद को जिंदा किया ज़माने में, जगह जगह पे जो खुतबे सुना गई ज़ैनब। और ज़ईफ भाई का गम बांटने को मक्तल में, ज़ईफ भाई का गम बांटने को मक्तल में, जवां भतीजे के लाशे पे आ गई ज़ैनब। असीर हो गई, असीर हो गई मुश्किल सही ज़माने की, असीर हो गई मुश्किल सही ज़माने की, हुसैनियत को मगर जगमगा गई ज़ैनब। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब।
جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب.